students, will start with our next lecture of final account. Now this is the 8th sum. Again, I have taken an unsolved sum from your textbook. First, we'll start reading. What is given? Suchita and Gayatri are partners sharing profit and losses in the ratio. This is the profit sharing ratio 3:2. We are supposed to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet as usual. कल जो हमने सम किया था उसमें करंट अकाउंट भी हमने प्रिपेयर किया था. होप सो आपने अच्छे से व्यू किया होगा. अब यहाँ पर जो आपको ट्रायल बैलेंस दिख रहा है, दिस इज इन आवर जर्नल फॉर्म. इट इज नॉट इन आवर लेजर फॉर्म. ये जर्नल फॉर्मेट है, इसलिए अगर आपको देखेंगे तो डेबिट क्रेडिट करके अमाउंट लिखा हुआ है. ओके. अब पहला काम जो हम करेंगे, विल स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट. देखेंगे ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, मोटिव पावर. तो मोटिव पावर कहाँ पर है? यहाँ पर है. तो ये हमें फर्स्ट कॉलम में लिख के रखना है. देन वी हैव डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग. वेयर इज बिल्डिंग? हियर. दिस ऑल्सो वी आर सपोज टू राइट इन फर्स्ट कॉलम. Then we have bad debts and RDD. Both will affect our bad debts and our sundry debtors. तो यहाँ पर है हमारा debtors and I think so bad debts are not there. Okay. तो bad debts नहीं दिए हैं, जो दिया है वो हम लिखेंगे. Okay. और जो last adjustment है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, bill receivable है. तो where is bill receivable? Here. नाउ विल स्टार्ट विद द सम. हम एक एक करके पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे. अभी यहाँ पर डेबिट क्रेडिट दोनों साथ में दिया है तो हम साथ में पोस्टिंग कर सकते हैं. परचेज एंड सेल्स आपको पता है हम कहाँ लिखते हैं? वी राइट इन अवर ट्रेडिंग अकाउंट. सो आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है. तो यहाँ पर ऑन माई डेबिट साइड आई विल राइट फर्स्ट परचेज. टू परचेज एक लाइन मैंने छोड़ दी है हमारे ओपनिंग स्टॉक के लिए. टू परचेज एंड परचेज अमाउंट इज 65,000. यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में मुझे रिटर्न दिखाई नहीं दे रहा है तो डायरेक्टली अमाउंट आई एम राइटिंग इन सेकेंड कॉलम. यहाँ पर हम लिखेंगे बाय सेल्स. सेल्स अमाउंट ऑल्सो आई कैन राइट डायरेक्टली इन सेकेंड कॉलम, 1,85,500. We completed with this. Second one है work manager salary, यानी कि जो फैक्ट्री में काम करता है. Therefore we are supposed to write it in trading account. Purchase के नीचे लिख सकते हो to work manager salary. No adjustment, directly amount in second column. उसके बाद में हमारे पास क्या है? कैपिटल. बैलेंस शीट liability side, capital. Now we'll write the name of the partner, Suchita. Amount 75,000. Leave 3-4 lines. 2-3 लाइन छोड़ दो. Then write Gayatri 40,000. Okay. उसके बाद में है हमारे पास opening stock. Where we are supposed to write trading account. To opening stock. If you are writing down then also no problem, लेकिन trading account में ही लिखना है. Okay. Opening stock के बाद में हमारे पास क्या है? Debtors and creditors. Balance sheet. Sundry debtors. We'll write the amount 47,500 in first column क्योंकि adjustment है. गायत्री के नीचे भी 2-3 लाइन छोड़ेंगे and then we will write sundry creditors. $35,000. Directly we can write the amount in second column because adjustment is not there. उसके बाद में है wages and salary. Wages word first use किया है, so we'll write in trading account. To wages and salary. We'll write the amount directly in second column because we don't have any adjustment. Then we have bill receivable, balance sheet, asset side.
डेटर्स के नीचे 3-4 लाइन छोड़ दो. बिल रिसीवेबल, bill receivable also we have adjustment, so I will write the amount in first column and keep. Then we have bills payable, liability, sundry creditors दिखाई दे रहा है, उसके नीचे हम लिख सकते हैं bills payable 27,300. Next, if you can see in trial balance we have discount. It is given on credit side, that means it is discount received. P&L account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट में कहीं पर भी लिख सकते हैं बाय डिस्काउंट 400. After discount we have motive power. You know where we are writing motive power in our trading account. To motive power. We have an adjustment regarding motive power, so we'll write in first column and keep. After motive power we have custom duty, where we are supposed to write our profit and loss account. So P&L account में हम लिख के रखते हैं to custom duty. Sorry, custom duty ना, we are not supposed to write in profit and loss account. हमें लिखना पड़ेगा इसको trading account में. Sorry, to custom duty. जगह छोड़नी थी वो भी भूल गए. To custom duty 1,500. After that we have, if you can see, we have interest. क्रेडिट साइड में दिया है, यानी कि क्रेडिट में ही लिखना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट. दिस इज इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम, therefore we are writing in credit side 1,300. Next we have अनप्रोडक्टिव वेजेस. अगर प्रोडक्टिव दिया होता तो ट्रेडिंग ये अनप्रोडक्टिव है, therefore we'll write in profit and loss account to unproductive wages 3,000. After that we have audit fees, rent, conveyance. तीनों की तीनों कहाँ जाएंगे? हमारे P&L अकाउंट में. साथ साथ में फटाफट इसको लिख लेते हैं. To audit fees, we don't have any adjustment, directly we can write the amount in second column 2,500. To rent 1,800. To conveyance का दूसरा मतलब होता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2,000. अब नेक्स्ट वन गुडविल, और उसके बाद में है कॉपीराइट्स, बिल्डिंग. तीनों के तीनों कहाँ लिखने हैं? गुडविल, कॉपीराइट, बिल्डिंग, ये तीनों के तीनों हमारे एसेट्स है. बिल रिसीवेबल दिखाई दे रहा है, उसके नीचे लाइन छोड़ दो, राइट गुडविल. Directly we can write the amount in second column 25,000. Then we have copyrights, this is also asset 20,000. Then we have building 88,000. Why I have written in first column? Because we have an adjustment. तीनों के हमने कर लिए. आगे क्या दिया है? पार्टनर सुचिता लोन. लोन तो लोन ही है, तो कहाँ लिखना है? हाँ, लाइबिलिटी साइड. You can write in the same way, partner सुचिता लोन. कितना है? 6,115. ये भी हो गया. क्या बचा है अभी? इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक. बोथ विल राइट इन एसेट साइड. बिल्डिंग के नीचे लाइन छोड़ दो, इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक. Directly we can write the amount in second column 40,26. We completed with our trial balance. Now one adjustment. सबसे पहला एडजस्टमेंट अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारे क्लोजिंग स्टॉक का है. दो इफेक्ट.
यहाँ पर एसेट है तो यहीं पर पहले लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक 19,700. सेकेंड, trading account credit side, buy closing stock 19,700. First adjustment done. Second, goods worth ₹3,000 distributed as free sample. क्यों distribute किया होगा हमने? What was the purpose behind distributing goods? In order to do advertisement. लेकिन इतने अमाउंट के गुड्स तो हमारे बिजनेस से बाहर गए, तो कहाँ लिखना है? You are supposed to write it here. Okay, buy goods, first effect, distributed as free sample. Though they were distributed as free sample, but that amount of goods went outside the business, so we are supposed to write one effect in trading account. क्यों हमने ये बांटे? एडवर्टाइजमेंट करने के लिए. So second one यहाँ पर to advertisement. आप ब्रैकेट में लिख सकते हो गुड्स 3,000. मोटिव क्या था? क्यों डिस्ट्रीब्यूट किए? ताकि लोगों को पता चले वो हमारा प्रोडक्ट परचेस करें. थर्ड एडजस्टमेंट, 2 एडजस्टमेंट हो गए. थर्ड वन, मोटिव पावर इंक्लूड 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर. आपको पता होगा मीटर लगाते हैं हम, उस मीटर के लिए हमने डिपॉजिट पे किया, और जो मीटर होता है दैट इज आवर एसेट. So whatever money is paid for that you can't include in motive power. तो पहला काम क्या करना है? जो गलती से इंक्लूड किया उसको लेस करो. यहाँ पर आपको मोटिव पावर दिखाई दे रहा होगा, लेस डिपॉजिट. एंड व्हाट इज द डिपॉजिट अमाउंट? 500. तो यहाँ से हमको 500 माइनस करने हैं, विल गेट 850. सेकेंड इफेक्ट, ये हमने डिपॉजिट किसके लिए दिया था? मीटर के लिए दिया था. मीटर एक बार लगाएंगे तो वो भी हमारा एसेट है. डिपॉजिट फॉर पावर मीटर 500. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 5%. कहाँ है हमारी बिल्डिंग? यहाँ पर लिखी है हमने, लेस डेप्रिसिएशन at the rate of 5%. अब 88,000 पर 5% if you find it will come 4,400. माइनस करने के बाद में इफेक्ट आपको बाहर लिखना है, it will come 83,600. सेकेंड इफेक्ट, नुकसान हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4,400. ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया. अब पहले हम 6th एडजस्टमेंट करेंगे, फिर हम 5th वन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है, पहले वो हमको डेटर्स में ऐड करना है, फिर बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी बराबर मिलेगी. अगर आप ये फर्स्ट करके ये सेकंड में करोगे तो इट विल गो रॉन्ग. ओके, सो फर्स्ट विचएवर बिल रिसीवेबल इज डिसऑनर दैट वी विल इंक्लूड. अब बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ, उसके 2 इफेक्ट करते हैं हम. पहले यहाँ से माइनस करेंगे, लेस डिसऑनर्ड. The amount is 4,000. 22,000 minus 4,000 you will get 18,000. यहाँ से माइनस करना है, यहाँ ऐड करना है, ऐड डिसऑनर. It will come 4,000. ऐड करने के बाद में 47,500 plus 4,000 you will get 51,500. Now we will add minus new bad debts. अब हम हमारी 5th एडजस्टमेंट करेंगे. बैड डेब्ट्स वाली क्या है? वो 2,000 है और 3% आरडीडी क्रिएट करनी. तो नाउ विल सब्ट्रैक्ट फर्स्ट 2,000. अगर आप बिल रिसीवेबल बाद में ऐड करोगे तो आरडीडी की अमाउंट आपको गलत मिलेगी. ओके, तो पहले आपको बिल रिसीवेबल ऐड करना है, फिर आरडीडी फाइंड आउट करनी है. दिस यू विल गेट 49,500 लेस न्यू आरडीडी. अब न्यू आरडीडी कितनी क्रिएट करने के लिए बोला है? एट द रेट ऑफ 3% ऑफ 49,500. 49,500 पर 3% इफ यू आर फाइंडिंग, इट विल कम 1,485.
माइनस करने के बाद में आपके पास बचता है 48,015 रुपीज। अब इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट, it will go in our profit and loss account. 2. New bad debts plus new RDD. Bad debts is 2,000, RDD is 1,485, 3,485, दोनों इफेक्ट हो गए। इसी के साथ में हमने सब कंप्लीट कर लिया। क्या बचा अभी हमारा? व्हाट इज लेफ्ट? क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। अकाउंट क्लोज करना। क्रेडिट में देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ तीन अमाउंट है, 1,85,500, 19,700 एंड 3,000। तीनों को ऐड करके हम टोटल यहाँ पर लिखेंगे। जो बच गया वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इट विल कम 2,08,200। कितना है वो? 2,08,200 माइनस क्या करना है? 18,700, 65,000, 2,300, 4,850, 1,500। ये सारे के सारे अमाउंट माइनस करने हैं फ्रॉम 2 लाख। विल राइट द सेम अमाउंट यहाँ पर भी। 2,08,200 में से ये सारा माइनस करने के बाद में जो बच गया वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज, after subtracting all this amount, will get 1,15,850. Where we are supposed to carry forward? यहाँ पर by gross profit brought down 1,15,850। तीनों को ऐड करना है। अब यहाँ पर भी तीन ही है, 1,58,050, 400 और 1,300। पहले हम इसका टोटल लिख लेते हैं नीचे। आफ्टर एडिंग दिस थ्री अमाउंट विल गेट 1,17,550, 1,17,550। अब हमको क्या मिलेगा? हमारा नेट प्रॉफिट। What we are supposed to subtract from 1,17,550? 3,000, 2,050, 1,800, 2,000, 3,000, 4,400, 3,485 रुपीज। माइनस करने के बाद में हमारे पास बचते हैं फिर भी 97,365, जो आपको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? इन द रेशियो 3:2. This net profit which we are getting, we are supposed to distribute in the ratio 3:2. आप क्या करोगे? 97,365 divide by 5 into 3 will get first one share, divide by 5 into 2 you will get second one share. रेशियो आप ऑलरेडी सीख चुके हो स्कूल में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सुचिता and then Gayatri. After distributing we'll get in the ratio 3:2 we'll get first one 58,419, 5 है and here we'll get 38,946, where we are supposed to write naturally in our balance sheet liability side, add net profit 58,419, amount outside 1,33,419। सेम वे गायत्री में भी ऐड करेंगे टू नेट प्रॉफिट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आप उसके क्रेडिट में लिखोगे, प्लस करने के बाद में आएगा 78,946। तो पहले हम लायबिलिटी साइड ही क्लोज करते हैं। लायबिलिटी साइड वी हैव 1,33,419, 78,946, 35,000, 27,300, 6,150,
पांचों को ऐड करने के बाद में जो हमारा टोटल आ रहा है, दैट टोटल विल बी 2,80,815। हाँ, वही टोटल हमको एसेट में भी चाहिए। एसेट में क्या वैल्यू है सैलरी डेप्टर्स की? 48,015, 18,000, 25,000, 20,000, 83,600, 40,000, 26,000, 19,700 एंड 500। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस करने के बाद में सेम टोटल आएगा आपका ऑटोमेटिकली 815। ओके, अब आपको करना क्या है, सम ध्यान से देखना है। एक बार व्यू करके अगर नहीं समझ में आएगा, व्यू इट फॉर 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। अनसॉल्व सम है, अच्छे से व्यू करना है, 2-3 बार व्यू करो, go through it. Wherever you have doubt, you can ask me when I'm taking live lecture on Google Meet. Okay, आपको पता है जब भी हमारा लेक्चर होता है, I upload the video also and I clarify the doubt on Google Meet also. तो आपको ये अच्छे से व्यू करना है लेक्चर, जहाँ पर डाउट है गूगल मीट में पूछना है, and the same sum, it is an unsolved sum, you are supposed to solve in your notebook also. साथ साथ में बिना देखे सॉल्व करो, टेक्स्ट बुक का ही अनसॉल्व सम है, अच्छे से सॉल्व करना है और नोटबुक में लिखना है। फिर भी अगर डाउट है, मैंने अच्छे से सब एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, स्टिल यू हैव डाउट, you can ask me when I'm taking lecture on Google Meet. Okay, so solve the sum nicely in your notebook, and whatever doubt you have, you can ask me when I take lecture on Google Meet. So go through the lecture very nicely, view it nicely, write in your notebook. Take care, have a nice day.